ਚੱਪਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਘਰ 'ਚ ਵੜਿਆ ਨੌਕਰ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ। 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੰਮ। ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੱਪਲ ਪਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਨੌਕਰ ਵੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਨਾੜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨੀਚੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਲਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਦ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਤੜਫਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੜਫ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੂਰਨੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੂਰਨੀਆਂ ਦਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੱਪਲ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਜਦ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਧਨਾੜ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। आओ परिवारक मेंबर का इस ऊपर की बयान है, सुनते हैं। सुबह 5 बजे सही सलामत घर से गया था तो मेरे पास 6 और 7 के बीच में कॉल करी सरदार ने, अपने डैडी को उठा के ले जाए यहाँ से, इसने पीरे किया। तो मैंने जाकर देखा सर मेरा डैडी खाट पे पड़ा रखा था, उसके यहाँ पे चोट थी, पाँव पे चोट थी, उसके ऊपर पानी की बाल्टियाँ मार रही थी जी। मैंने पूछे उससे भी चोट कैसे लगी, उसने आगे से ये बोला उठा के ले जोर से। तो मैंने बोला सर अब इसको गड्डी में दवाई दुआ के लावा, उसने गड्डी से मना कर दिया सर। तो मैंने अपने भाई पे कॉल की, मेरे भाई फिर उसने ऊपर बुलाया, ऊपर पता नहीं उन्हें क्या 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 मेरे भाई है। तो फिर कब उनकी मौत हुई, कहाँ पर उन्हें? वहाँ से उठा के संगोया ले जाना। तो मेरे डैडी ने होश आया तो उसने बोला कुछ टाइम के लिए होश आया, भाई पप्पू घर आई और कुछ बिल्ले ने मुझे डंडो लाठियों से मारा, मैं चप्पल लेकर अंदर बढ़ गया था इस वजह से। तो संगोया से सर जवाब दे दिया, सिविल सेंटर में गए, वहाँ से जवाब दे दिया, सर क्लबना में गए, यहाँ से जवाब दे दिया, चंडीगढ़ रह के गए। चप्पल लेकर उनके कमरे में चले गए थे, घर में बढ़ के सर बस एंट्री करी दिया। अच्छा, तो क्या चप्पल का ही एक कारण सामने निकल कर आ रहा है? मार पहले भी गाली गलोच हुआ थी सर, पर इतनी नहीं हुआ थी। हम तो काफी ये क्यों कई सालों से काम कर रहे थे? वहाँ से उठा के हम संगोया लेके जाते हैं, फिर रास्ते में डैडी को होश आया, उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरे साथ मारपीट किया, डंडे और उससे मारा। तो हम डॉक्टर के पास ले गए, उन्होंने बोला सिविल सेंटर में ले जाओ। तो यहाँ पे ले गए, उन्होंने बोला मेरा गर्म दिया और यहाँ से थोड़ी देर रखा उन्होंने, उसके बाद पीजीआई पैरासिटामोल कैसे पहले वहाँ से फिर सर उन्होंने मेरे को ऊपर बुलाया था, ऊपर उनके कमरे में बाकायदा खून पड़ा हुआ था और एक चप्पल यहाँ पे थी, एक चप्पल दूर पड़ी हुई थी। सर जिस तरीके से परिवार ने हमें बताया उस तरीके से तो इनका यही कहना है कि भाई चप्पल पहन के वो उनके घर के अंदर चला गया, जहाँ पर उसके साथ ये सारी घटना हुई। और मैं फोटोज लेकर भी आई हूँ, फोटोज में सर के ऊपर भी बराबर चोट लगी हुई है, पैर पे भी लगी हुई है, अंगूठे
अंगूठे पर भी लगी हुई है और उसके यहाँ पर गर्दन पर भी चोट लगी हुई है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। और जिस समय उसको हॉस्पिटल लेकर आया गया था उस समय वो जीवित था। डॉक्टर के सामने उसको ब्लीडिंग चल रही थी। ये डॉक्टर ने MLR रिपोर्ट में लिखा है, ये MLR रिपोर्ट भी मेरे पास ही है और इसमें क्लियर उन्होंने लिखा है। और 2 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। सबसे बड़ी बात ये है कि जिस समय उनको चोट लगी तो वो जो परिवार है उसने इसके मृतक के परिवार को फोन किया बेटे को कि भाई आप आकर इसको ले जाओ। लेकिन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी पर्सन, अगर मेरा सर्वेंट है तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि भाई मैं उसको अस्पताल ले जाऊं। मैं इस बात का इंतजार ना करूं कि उसके घर के आएंगे, वो उसको लेंगे। भाई घर वालों के पास साधन है नहीं है, घर पे है नहीं है, 100 बातें होती हैं, लेकिन भाई मालिक की तो ये जिम्मेवारी है कम से कम उसको अगर चोट बाई चांस भी अगर लग गया तो उसको उठा के तो लेके जाता। क्या दूध वगैरह निकालने का काम करते सर थे? सीरी वर्ड होता है एक हरियाणा में, सीरी का मतलब होता है जो गोबर कूड़ा दूध निकालना, न्यार लेना, भैंसों की सेवा करना और जो झाड़ पूछ के जो काम करते हैं, ये सारे काम उन लोगों के होते हैं। और ये बंधुआ मजदूर टाइप 10 साल से उनके पास लगा हुआ था। 6000 सारी सैलरी थी। आप बता दो 6000 सैलरी में उसने दारू भी पी ली। और सवेरे 5 बजे कौन दारू पीता है? ये तो कोई बचाव तो नहीं हुआ ना कि उसने दारू पी रखी थी तो तुम मार दोगे उसको। तो दुनिया भर के लोग सड़कों पे मरे पड़े हैं, मारो सबको। तो उन 2 दिनों के दौरान भी उनके परिवार से कोई नहीं आया? नहीं, कोई मिलने नहीं आया ना, कोई मिलने उनसे अस्पताल में कोई नहीं आया मिलने। उसी दिन डेथ हो गई थी उसकी। कहाँ का मामला है मैम पूरा ये ये? चुरनी गांव का मामला है, करनाल में पड़ता है सर। और जो मृतक है वो वाल्मीकि जाति से संबंध रखता है और केवल शोषण था ये। सीरी को सर महीना नहीं नहाने की फुर्सत लगती, उसके पास इतना काम है, दिन रात की बंधुआ मजदूरी करते हैं ये। इनके पास टाइम नहीं होता इतना कि ये नहा भी ले। हो सकता है कि गंदे जो चप्पल जूते पहन के अंदर चला गया होगा। और परिवार जिस समय कमरे में गया है वहां पर दोनों चप्पलें अलग अलग पड़ी हुई थी, वहां पर खून पड़ा हुआ था। और जो वो मौके पर जो महिला है जिसके ऊपर इन लोगों ने आरोप लगाया है, वो महिला ये कह रही है कि इसको साफ करो। अरे मारा मानस मरा पड़ा, तू कह रही है इसने साफ करो, तरीका नहीं है सर। तो फिलहाल क्या मांग की जा रही है? फिलहाल हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि पुलिस का ये कहना है कि हमने 2 लोगों को राउंड अप किया है। हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि आपके पास मेडिकल है, आपके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, आपके पास डेड बॉडी भी रखी हुई है, उसके आधार पर आप आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दीजिए, हम अपने घर चले जाएं। तो आप वकील के तौर पर नहीं, मैं वकील के तौर पर बिल्कुल भी नहीं आई हूँ। वकील हूँ तो हूँ, लेकिन अपने समाज के दर्द में आई हूँ। मैं अनुसूचित जाति से संबंध रखती हूँ और ये मेरे समाज के लोग हैं, मैं इसलिए आऊँ। कितने लोग राउंड अप किए सर? सामने आया? अभी हत्या का मामला सामने आएगी। जैसे वो उनके वहाँ नौकर था, उनका कहना यह है कि ऊपर ही छत से गिराया गया है। जो इंजरी है वो भी हमने डॉक्टर से बात चली है, उसमें वेरीफाई कर लेंगे और जो भी जेन्युइन कार्रवाई है बिल्कुल करेंगे। क्या चप्पल डाल के चले गए थे इसलिए कोई बात? जी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कितने लोग राउंड अप किए हैं सर इसमें? अभी 2 राउंड अप किए हुए हमने, बाकी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो कितने आरोपी हैं? 3 के खिलाफ। सर मृतक के बेटे का कहना है कि ऊपर जब उसको बुलाया गया था तो वहाँ पे खून बिखरा हुआ था ऊपर भी। देखो ये पार्ट है इन्वेस्टिगेशन का है, अभी मैं इसमें क्लियर कर कुछ बता नहीं पाऊंगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख के और जो भी आगे की जांच होगी उसके बारे में डिटेल में आपसे। क्या मृतक अनुसूचित जाति से हैं? जी तो जहाँ काम करते थे वो स्वर्ण जाति के हैं? हाँ जी वो सिख है और ये वाल्मीकि समुदाय से।